السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے سرکاری دورے پر روانہ۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ناظرین، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات ہوگی۔ ایڈوائزر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ناظرین، سیلاب نے بہت سی تباہ کاریاں مچائی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ابو تراب صاحب سے جو ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کتنی اموات ہو چکی ہیں، کسانوں کو کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں اور اس ٹائم کیا صورتحال ہے، اور ود ان 24 آورز ود ان 48 آورز جو ہے وہ کیا سچویشن ہونے جا رہی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں تراب صاحب سے۔ جی تھینک یو سو مچ تراب صاحب فار یور ٹائم۔ تراب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل، سیلاب نے جو ہے بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں مچائیں اور جانوں کا نقصان ہوا، جانور جو ہے بڑی تعداد میں ان کا ایشو بنا، وہ جان کی بازی آ رہے، جبکہ کلاؤڈ برسٹ کے بھی جو ہے ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس دن پروفیسر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ گرین جو ہے گیسز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، کہ بڑے ممالک ہیں وہ گرین گیسز کا اخراج وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ابو تراب صاحب؟ عمر صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے پروگرام میں مدعو کیا مجھے۔ جی مائی پلیئر تراب صاحب۔ عمر صاحب، بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ لامحلہ طور پہ پوری دنیا کے جو جتنے بھی مختلف ممالک ہیں وہ اس کلائمیٹ چینج کے جو چیلنج ہے، بڑا چیلنج، اس کو فیس کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر جو متاثر ممالک ہیں، پاکستان کا شمار ان میں ہوتا ہے، اور ہم ہر سال، یہ کوئی اس سال نہیں ہے بلکہ ہر سال ہم سیلاب کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو ہے ہمارے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ اثرات ہمیں سامنے آتے ہیں۔ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے، کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، زرعی شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کے پی کے میں اس نے بہت ساری تباہ کاریاں ہوئی ہیں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، بڑے پیمانے پہ تباہ کاری۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو اب پنجاب میں صورتحال ہے سیلاب کی، اور سندھ میں سیلاب کی صورتحال اس طرح ہے کہ دن بدن جو ہے وہ پانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مختلف دریاؤں میں۔ بھارتی آبی جارحیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں۔ ابھی ماہرین جو ہیں وہ مسلسل اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں نئے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نئے ڈیمز نہیں بناتے تب تک سیلابی صورتحال پر آپ کسی صورت بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سیلاب کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں دریائے ستلج میں آئے روز جو ہے وہ سیلابی جو ہے ریلیں ہیں وہ مختلف دیہات میں جو کاشت فصلیں ہیں ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے قصور، بہاول نگر، اکاڑا، پاک پتن سمیت جو مختلف جو قریبی اضلاع ہیں وہ اس وقت متاثر ہیں۔ دریائے سندھ میں جو ہے وہ سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دریائے چناب میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مختلف دریاؤں میں جو سیلابی صورتحال ہے اس پر این ڈی ایم اے اقدامات تو کر رہی ہے۔ پاک افواج بھی جو ہیں وہ کلاؤڈ برسٹ ہو یا سیلابی صورتحال ہو، ان سے متاثرہ علاقوں میں پاک افواج جو ہیں وہ پیش ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امدادی سرگرمیاں ہم کرتے ہیں اس صورت میں جب سیلاب جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جب دریاؤں میں پانی کی آمد اور اخراج اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل ضرور ہونے چاہیے کہ ہم ان کے جو مانیٹرنگ کا سلسلہ ہے اس کو مانیٹرنگ کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کر سکیں۔ آئے روز جو ہے وہ دریائے ستلج میں سیلاب جو ہے وہ مختلف فصلوں میں مختلف اضلاع میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی صورتحال انتہائی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ جو کاشتکار جنہوں نے تل کی فصل کاشت کی، جنہوں نے چاول کی فصل لگائی، کپاس کی فصل لگائی، اب وہ فصلیں جو ہیں وہ بالکل نیئر ٹو ڈیڈ ہو چکی ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی، پانی زیادہ کچھ دن تک یہاں پہ جمع رہا تو یہ فصلیں زیادہ دیر تک سیلابی پانی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تراب صاحب، یہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، فرسٹ آف آل تو کسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ پانی کی قلت ہے، ٹھیک ہے، پھر پانی کا قحط، پانی کی قلت سامنے آتی ہے اور ہر سال ہر حکومت کے دور میں آتی ہے، پھر ایک دم سے جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے جو لوگوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، فصلوں کا بھی نقصان اٹھانا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان تو بیس سے ایگریکلچر پہ کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہماری
معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت ہے. اس بارے میں ہم نہ تو اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کنارہ کشی کر سکتے ہیں کہ زراعت کے بغیر ہماری پاکستان کی معیشت کسی قابل نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زراعت کے لیے دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن زراعت کی بہتری کے لیے، زراعت کو بچانے کے لیے اقدامات بالکل صفر ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو کاشتکار ہیں ان کو 3 سے 4 ماہ تک پانی کی جو ہے وہ قلت کا سامنا رہتا ہے، نہروں کی بندش کا سامنا رہتا ہے. اس کے بعد جب وہ نئی فصل لگاتے ہیں تو فوری طور پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے. مونسون بارشوں کی وجہ سے ہمارے پاس سٹوریج جو وسائل ہیں وہ نہیں ہے. سٹوریج ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس سیلاب کی صورتحال 1 سال نہیں، 2 سال نہیں بلکہ ہر سال پیدا ہوتی ہے. جب بڑے پیمانے پر سیلاب آتا ہے تو وہ شہروں کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن جو ہر سال سیلاب آتا ہے اس کی وجہ سے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کم نقصان پہنچتا ہے لیکن جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں، دریائی بیلٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. امدادی سرگرمیاں تو شروع کی جاتی ہیں، امدادی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جس کسان کی فصل تباہ ہو چکی ہے اس کو امدادی کیمپ کیا کچھ دے سکتا ہے. یا آپ کا جو امدادی سرگرمیاں جو آپ اس وقت برائے نام امدادی سرگرمیاں کرتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ ایک بار پھر خسارے میں چلا جاتا ہے. کسان کو خسارہ ہونے کی وجہ سے ہم پھر ملکی معیشت میں ترقی کرنے کے بجائے ایک بار پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہروں کی بندش جہاں پر وہ کنٹرول کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سٹوریج ریسورسز ہیں ان کو اوپر کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر سٹوریج ریسورسز نہیں بنائیں گے ہم واٹر ریسورسز تو ہم کسی سیلابی صورتحال سے نہیں نمٹ سکتے. صرف ہم اقدامات کے دعوے تو کر سکتے ہیں. ابو تراب صاحب، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا کسان پریشان ہے. ریسنٹلی جو ہم نے پروگرامز کیے، ہم نے مل کے آواز بلند کی کسانوں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی چینی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا. آج آپ نے نیوز دی کہ مرغیوں کا جو یہ ہے گوشت ہے اس میں بھی جو ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے، ریٹ بڑھ گئے ہیں. تو چینی پہلے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہے پھر پاکستان منگوائی جاتی ہے. تو یہ کیا گیم ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو چکر ہے وہ عمر صاحب آپ کے بھی سامنے ہے. جب کسان سے گنا لینے کا وقت آتا ہے تب آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ قیمت فکس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ امپلیمنٹیشن کروائی جائے گی اور کین کمشنر جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی قیمت ہر سال مقرر کی جاتی ہے گنے کی سرکاری قیمت، اس کے اوپر کسان کو وہ پیمنٹ نہیں ملتی. وہ پیمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، کسان کو اپنی پیمنٹ کے لیے 6 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر مل مالکان جب نیا سیزن شروع ہونے لگتا ہے تو اس سے 1 یا 2 ماہ پہلے وہ پچھلے سال کی پیمنٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ مل مالکان نے جب گنا لینا ہوتا ہے تو ناظرین، ہمیں بابر خان یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے. جی بابر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. جی تراب صاحب آپ کریں کمپلیٹ. جب عمر صاحب گنا لینا ہوتا ہے تو اس وقت شوگر ملیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت بالکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں. لیکن جب گنا سیزن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد چینی جب مارکیٹ میں جانی ہوتی ہے تو شوگر مل مالکان اس وقت چینی سٹور کر لیتے ہیں. ان کے تمام جو مالی کرائسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ایسا بحران پیدا کیا جاتا ہے چینی کی شارٹیج کا کہ چینی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے خریدنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر حکومتی پالیسیاں نہیں ہیں. حکومت کبھی چینی ایکسپورٹ کرتی ہے کبھی امپورٹ کرتی ہے. ایکسپورٹ اور امپورٹ کی گیم کرنے سے پہلے یہ چیز ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی کی جو لاگت ہے اور کھپت وہ کتنی ہے. جی ناظرین، ہمیں بابر خان یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے. جی بابر صاحب، فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا تربت بلوچستان کا دورہ ہے اور سول انتظامیہ سول نمائندوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ بابر صاحب؟ جی ناظرین، آئی تھنک سو کہ کوئی ساؤنڈ ایشو ہے. ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ کراچی سے بھارتی ایجنسی را کا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے اور انڈیا جو ہے پیش ہے پاکستان کو گرانے میں، پاکستان پہ اٹیک کرنے میں اور پاکستان کو ہر محاذ پہ شکست دینے میں. بٹ الحمدللہ پاک فوج کی جو ہے بہترین حکمت عملی، پاکستان حکومت کی بہترین حکمت عملی اور بھارت کو جو ہے آپریشن سندور میں مار کھانا پڑی. اس کے بعد جو ہے میزائل بنا رہے ہیں. برازیل سے 500 ارب کی ڈیل کینسل ہوئی مگر پھر بھی بھارتی راہ کا مین اینڈ میجر ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہی ہے اور پاکستان کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے.
तो आप साहब आप बता रहे थे चीनी के बारे में, काइंडली कंप्लीट करिएगा प्लीज। देखिए उमर साहब, बात ये है कि जब चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट गेम हम खेल रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी प्रोडक्शन और हमारी जो खपत है वो कितनी है। हुकूमती पॉलिसियों पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। देखें, इंपोर्ट करना भी आसान है, एक्सपोर्ट करना भी आसान है। एक्सपोर्ट करते वक्त आप देख रहे होते हैं कि जी हमारे पास चीनी इतनी वाफर मौजूद है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पास चीनी हमने इस्तेमाल कितनी करनी है, हमारी जरूरत कितनी है। जब चीनी का बहरान पैदा होता है उस वक्त आप यहाँ पे जो शुगर माफिया है उसको लगाम नहीं दे सकते, वो आपकी दस्तरस से बाहर है। शुगर माफिया हुकूमत की पहुंच से इस कदर दूर है, आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब हुकूमत और जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो आए रोज मुज़ाकरात कर रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है उसको कंट्रोल किया जाए, जो फिक्स कीमत है उसके ऊपर मार्केट में सप्लाई यकीनी बनाई जाए। लेकिन माफिया इस कदर, ये शुगर मिल्स के मालकान इस कदर बाअसर हैं कि वो पंजाब हुकूमत को किसी खातिर नहीं ला रहे और मार्केट में सप्लाई के लिए रिटेलर्स को, डीलर्स को चीनी तक फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से चीनी की आज जो सूरत हाल है वो चीनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बिल्कुल जो है वो बेकाबू हैं और वो बेचारे उनकी दस्तरस से भी बाहर है। जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किसी भी डीलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सियासी शख्सियात की जो फोन कॉल्स हैं वो उनको बेबस कर देती हैं। पैरा फोर्स बनाई गई थी वो भी इसलिए कि जखीरा अंदोजी और गरां फरोशी को कंट्रोल करेगी, लेकिन अब तक पैरा फोर्स के जो 20 से 25 दिन हमने सोशल मीडिया पे तो उसकी खूब तशहीर देखी है, लेकिन इस वक्त तक पंजाब में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई पैरा फोर्स की सामने नहीं आ सकी जिसमें ये हम कह सकें कि पैरा फोर्स ने चीनी की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए कोई बड़े स्टोर पर, बड़े गोदाम पर छापा मारा है या किसी बड़ी मिल के गोदाम को सील किया है। बिल्कुल देखिए तो आप साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, हमें बाबर खान यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। जी बाबर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। जी बाबर साहब, क्या कहना चाहेंगे? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा किया है, सिविल इंतजामिया और सिविल नुमाइंदों से भी मुलाकात की है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे 7 न्यूज ने मुझे बात करने का मौका दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मास्टर जनरल आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज, मिलिट्री हिलाल जुर्रत ने कल तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा किया है और इस दौरे का जो मकसद था वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना और तरक्याती मनसूबों का मुआयना करना था। आर्मी ने सिक्योरिटी हालात और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और जारी तरक्याती मनसूबों और बलूचिस्तान में समाजी और माशी बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम पर भी तफसीली ब्रीफिंग थी। कल का जो फील्ड मार्शल का दौरा था ये मौजूदा हालात में निहायत ही अहम है और जैसा कि आपको पता है कि फितनतुल हिंदुस्तान, भारत की प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व है और हमारा जो जनूबी बलूचिस्तान है, साउथ बलूचिस्तान, मकरान रीजन जिसमें तुर्बत, गवादर, पंजगूर शामिल है, वहां पर ये गाय बागाए बुजदिलाना हमले करते रहते हैं और जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनसे मुकाबला करने के लिए पहुंचती हैं तो ये भाग जाते हैं। कल का दौरा जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल जनरल मुनीर ने वहां पर जो है अवामी नुमाइंदों से और मकामी इंतजामिया के लोगों से और मकामी लोगों से मुलाकात की है और उन्हें ये पूरा यकीन दिलाया है अफवाज पाकिस्तान उनके शाना बशाना करी है, अफवाज पाकिस्तान उनके साथ है, अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने सिपाहियों से, जवानों से भी खिताब किया है और उनको सलाम पेश किया है। बाबर साहब, कराची से रॉ का नेटवर्क भी पकड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे? इन द एंड पाकिस्तान इज द टारगेट, बलूचिस्तान इज द टारगेट, कराची, लाहौर, पाकिस्तान इज द मेजर टारगेट। और ये अगस्त का जो महीना है ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आया है। पाकिस्तान को इस अगस्त के महीने में बहुत सारी खुशखबरियां मिली है। मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बताता चलूं कि 11 अगस्त को हमें बलूचिस्तान के हवाले से खुशखबरी मिली। एक कल अदम तंजीम मासूम लोगों का कत्लेआम करती है, PLA, उसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिका महकमा खारजा ने उसे जो है ना आम शहरियों के लिए खतरनाक करार दिया, कल अदम करार दिया। PLA पर और उसका एक जो है ना खुदकुश हमला आवरों का एक यूनिट है, अजीत ब्रिगेड पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद आप देखें कि फितनतुल हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि बलूचिस्तान के हालात अगस्त के महीने में खराब किए जाए। उनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया गया और काजी उस्मान नामी मजीद ब्रिगेड का अहम रहनुमा, उसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और उसने इस बात का एतराफ किया है कि किस तरीके से उन्हें टास्क दिए जाते थे कि बलूचिस्तान में आपने खसूसन अगस्त के महीने में आपने जहाँ पर दहशतगर्दी करनी है, खूनरेजी करनी है, उन्हें पकड़ा है। उन्होंने अपने और साथियों का भी बताया है। तो एक
बड़ा नेटवर्क था वो पकड़ा है हमारी सिक्योरिटी अदारों ने, और ये फितनतुल हिंदुस्तान जो है इन्हें भी नाकाम किया है, और बलूचिस्तान को ये बताया है कि सिक्योरिटी हर वक्त अलर्ट है और हम की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये जो नेटवर्क पकड़ा नेटवर्क ने इतराफ किया है कि किस तरीके से इन्हें फंडिंग होती थी, किस तरीके से इन्हें भारत से पैसा मिल रहा था, और भारत का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान को इन्होंने गैर मुस्तहकम करना है। बलूचिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से 44% बनता है जमीनी रकबा जो है, तो भारत की पूरी ये कोशिश है कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, अपने फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए जी बाबा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। निजना ने हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब ने। जी ब्रिगेडियर साहब आवाज आ रही है आपको? जी ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बलोचिस्तान का रिसेंटली दौरा किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? दौरा हमेशा पूरी दुनिया की नजर है बलोचिस्तान पे, एक बहुत ऑब्जेक्टिव को, और बलोचिस्तान की आपको पता सिचुएशन अच्छा खराब है जी। अगर आप ये कहें कि बलोचिस्तान इज ऑन फायर तो गलत नहीं होगा। और आपको पता है उस तमाम चीजों के अंदर जो है वो भारत की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तो आम एक चीज है वहाँ पे यूनिट्स डिप्लॉयड है, और जब भी इस किस्म का कोई चैलेंज होता है जिसमें आपको थ्रेट होता है इंटरनल, और खास तौर पे जो अब दहशतगर्दी का मामला पाकिस्तान के अंदर है जी, और जितना बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कराची से भारतीय एजेंसी रॉ का नेटवर्क भी पकड़ा गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब? अभी रिसेंटली विद इन आई थिंक सो के लास्ट 12 आवर्स। जी आई थिंक सो कोई साउंड इशू है जी। तो आप साहब क्या कहना चाहेंगे? भारत जो है वो पाकिस्तान को गिराने में पेश है। अब रिसेंटली रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया और उसके बाद जो है सैयद आसिम मुनीर साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान की जिस तरह से एग्रीकल्चर बैकबोन है, इसी तरह से बलोचिस्तान भी बैकबोन है। देखें उमर साहब, बात यह है कि पाक अफवाज जो हैं वो हमारा फख्र हैं। हम शुरू दिन से जो है वो उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है, पाकिस्तान को बचाया है। तो भारत कैसे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है? मार्का हक देख लें कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने नाक के चने चबवाए दुश्मन को और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। तो भारत जो है वो अब हमारे सामने खुल के तो आ नहीं सकता। अब रही सही कसर जो है वो ये है कि भारत कभी बलोचिस्तान में जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कार्रवाई करता है, कभी शुमाली वजीरिस्तान में और कभी अफगानिस्तान में। ये प्रॉक्सीज के जरिए जो कार्रवाइयां हैं उमर साहब, इनके जरिए भारत ना पहले कभी कामयाब हुआ है और ना अब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत है कि आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स को उन्होंने कत्ल किया, ये जो रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है, वहां से सीटीडी और हसास इदारों ने, हमारी फोर्सेज ने उसको इंटेरोगेट करना शुरू किया। जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसके ताने बाने जो है वो रॉ नेटवर्क के साथ जाकर मिले, और रॉ के जो 4 मरकजी मुलजमान हैं जो कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया गया। देखें रॉ किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है। बलोचिस्तान में देख लें, अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने के लिए रॉ ने, भारतीय मोदी सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने हर मजमूम कोशिश को जो है वो नाकाम बनाया। उनके मकासद में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। आए रोज जो है वो भारत की जानिब से प्रॉक्सीज लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन हम उनको 7 न्यूज के प्लेटफार्म से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि भारत जो भी कर ले पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारी अफवाज, हमारी जो अवाम है, कौम है, वो एक पेज पे हैं। जब कभी भी तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब भी कभी भारत ने इस पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरजस राय की है, तमाम सियासी जमातों ने यक जुबान होकर उनको जो है वो जवाब दिया है। फोर्सेज ने बाबर साहब क्या कहना चाहेंगे अबू तराब साहब के मौकफ पे? बाबर खान यूसुफजई साहब क्या कहना चाहेंगे अबू तराब साहब के मौकफ पे? जिस तरह से प्रॉक्सीज जो है काम कर रही है, अबू तराब साहब का कहना है रॉ की प्रॉक्सी। इसमें कोई राय नहीं है कि
दिन रात जो है बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। जैसा कि भाई ने बताया, बिल्कुल मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने भी सिपाहियों से, जवानों से अपने खिताब में उन्हें खिराज तहसीन पेश किया और उनकी जो कारकर्दगी है, जिन मुश्किल हालात में, जिन मर्जी हालात में वो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा कर रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान को नाकाम बना रहे हैं, कल फिर जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें पूरी तरह से ट्रिब्यूट पेश किया है। बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स है, मैं अपने सुनने वाले नाजरीन को, देखने वाले नाजरीन को बताता चलूं कि बलूचिस्तान के डायनामिक्स जो है वो बहुत मारूजी हालात जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं दूसरे पाकिस्तान की निस्बत। हमारे साथ दो मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, एक ईरान का बॉर्डर लगता है, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, जहाँ पाकिस्तान और फितनतुल खैर की जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है और ये बॉर्डर जो है ये हजारों किलोमीटर पर मुहित है, ये पहाड़ी इलाकों पे पर मुहित है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन मुश्किल हालात में हमारे जवान, हमारे बहादुर अफसरान इन मुश्किल मुकाबला करते हैं और इनको जहन्नुम हासिल करते हैं। जी, मैं बाबर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे आप बाबर साहब के मौक़िफ़ पे? ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब। जी, ब्रिगेडियर साहब, इनका ये कहना है कि प्रॉक्सीज काम कर रही हैं रॉ की और बलूचिस्तान को जो तबाह बर्बाद करने में, लोगों को नुकसान पहुंचाने में, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में रॉ की प्रॉक्सीज का हाथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ये तो आज की बात नहीं है, ये तो सारी पूरी दुनिया को अब पता है, पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है। रॉ और प्रॉक्सी का काम तो नहीं, रॉ खुद काम कर रही है वहाँ पर। रॉ भी है, उसके अंदर NTS भी है, उसके अंदर मुसैद के एलिमेंट भी हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर उन्होंने बनाया था मदरसा में, जहाँ पे मुसैद के एलिमेंट भी थे, रॉ भी थी और NTS भी थी अफगानिस्तान की, और अमेरिकन फोर्सेज वहाँ पे थी। और उसके बाद वहीं पे लोगों को ट्रेन किया जाता था। बल्कि वहाँ पे एक दफा तालिबान ने उधर उस जगह पे हमला किया था, वहाँ से पुराने पाक के नुस्खे मिले थे जिनको हेब्रियो में ट्रांसफर किया गया, अपना ट्रांसलेट किया गया था, उनको वहाँ पे मिस इंटरप्रेट करके अफगान को भर्ती किया जाता था और वहाँ से फिर उनको ये रॉ जो है और मुसैद के ज्वाइंट एक सेंटर था, फिर उनको पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था, उनको डॉलर्स दिए जाते थे, उसके बम्बार तैयार किए जाते थे। इसका एतराफ तो हम क्या कहेंगे, अजीत कुमार डेविल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे भी आ गई थी और रिलीज भी हुई थी, लोगों ने उसके ऊपर बातचीत भी की थी, जिसमें वो कहता था कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह भी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो जितने भी हैं वो मर्सिनरीज हैं, यानी वो पैसा दें उनको और कम तमाशा देखें तो पैसा दे के हम उनको लड़ाएंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो करेंगे, हम सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, हम हर किस्म के काम करेंगे। तो खुद उन्होंने कहा है, तो ये आज की बात थोड़ी है, ये तो जब से बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई है और जब से बलूचिस्तान के अंदर 1973 में जो इंसर्जेंसी हुई थी, तो ये हरदियार मरी और ये जो अपना इसका बाप जो था वो शेरू और वो सारे गुलाम रसूल जिंगी और ये तमाम लोग भाग के किधर गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे ना। बिल्कुल सही। 1973 में जो इंसर्जेंसी हुई थी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बड़ा मशहूर ऑपरेशन किया था, फाइनेंशियल मालोंग ऑपरेशन, उस वक्त से अफगानिस्तान के इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद अब ये देखा आपने जो रिसेंटली हो रहा है और इसको इंडिया ने भारत ने खुद माना है। नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट नहीं आपने पढ़ी थी, बलूचिस्तान से मुझे रिंग करते हैं लोग, तो ये तमाम चीजें तो भाई। मगर ब्रिगेडियर साहब, अब तो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान से तजारती मुआहदे किए जा रहे हैं, जबकि भारत तो नाकामी का मुंह देख रहा है। बड़े जब से ये जो है ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने खुद ही ये ऑपरेशन संदूर शुरू किया और खुद ही इन्हीं के जो है वो गले में ढोल लटक गया, जो कि फिर बजाया गया पाक फौज की जानिब से और बड़ा खूब बजाया गया, पूरी दुनिया में डंका बजा। तो क्या कहना चाहेंगे मार के हक पे? हो गया, पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली, अब वो एक रियलिटी बन गई है तारीख के और आंख में आ गया और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं, इवन दी फ्रेंच चीफ आर्मी स्टाफ, फ्रांस के अंदर जो चीफ आर्मी स्टाफ होता है उसको चीफ आर्मी स्टाफ एंड स्पेस कमांडर कहा जाता है, उसने अपनी स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट छपी, उसने कहा कि हमें मुझे पता चला है कि हमारे 3 रफेल जो हैं वो गिराए गए हैं और उसकी क्रैश साइज का भी मुझे पता है। फिर बहुत सारे और सोच सकने वाले लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की।
मगर ब्रिगेडियर साहब, अब ये इंडिया के क्या मकासद नजर आते हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तान की शान बलोचिस्तान जो है, यहाँ पे ये पेनिट्रेट करके क्या मकासद इस टाइम हासिल करना चाहते हैं आपकी नजर में? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उनके मुकासद क्लियर है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट नहीं होते, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट होते हैं। और उनका बेसिक मकसद पाकिस्तान के अंदर, मैंने बताया कि अजीत कुमार के लेवल के एड्रेस में बता रहा हूँ कि वो कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देंगे और जो लोग जो ग्रुप वहाँ लड़ रहे हैं वो आइडियालॉजिकल मोटिवेटेड नहीं है, हम उनको पैसा देंगे और पाकिस्तान के अंदर लड़ाएंगे। तो इसका मकसद तो है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैलाना ना, और वो फैला रहे। एक जमाना था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की नीचे सिर्फ कहती नहीं थी कि भारत इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उनको जफ्फे लगाते थे अपने ड्राइंग रूमों। आपको याद नहीं जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आया था, बगैर बताए लैंड किया था, उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के घर गया था, वहाँ अजीत कुमार डेवल भी था और वहाँ बैठे चाय पी रहे थे। तो इस किस्म के तो हमारे पुराने माजी में भेजे हुए हैं ना, जी जी, इंडिया को इतना लिवरेज दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को कॉन्स्टेंटली फाइनेंस कर रहा है। अभी जो अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को और बीएलए को जो बिल्कुल सही मेंशन किया है और जो उनको ब्रिगेडियर साहब, ये बीएलए ने भी ब्रिगेडियर साहब बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। बीएलए भी पेश रही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। इसी पे मजीद बात करते हैं। उससे पहले तोराब साहब, अब ये जो सैलाब की तबाहकारियां हैं और ये किसानों का नुकसान है, ये कैसे पूरा हो सकता है? इसके जो है गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज बनाने की इमीडिएटली जरूरत है? देखें उमर भाई, सैलाब की तबाहकारियों से हमें बचने के लिए, देखें सैलाब, क्लाइमेट चेंज, बादल बरसना, सैलाब आना, ये कुदरती आफत ज़रूर है, लेकिन इससे बचने के लिए हम कम से कम इकदामात तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही। हमारी हुकूमतें जो हैं वो इकदामात करने से कासिर हैं। उसकी वजह कुछ सियासी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हुकूमत को वो काम नहीं करने देते। अब अंदाज़ा लगा लें कि आबी माहिरीन रो रो के थक गए हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में नए डैम्स बनाए जाएं, लेकिन उसके ऊपर सूबों के इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सूबों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से नए डैम्स नहीं बन रहे और उन इख्तलाफात की वजह से पूरे मुल्क को, मुल्की मईशत को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। पाक अफवाज जो हैं वो सैलाबी इलाकों में मुसलसल जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जितना नुकसान हो चुका है उसका अजाला कैसे होगा? उसका अजाला ये है कि हम मुस्तकबिल में कम से कम उस नुकसान से बचने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए नए डैम्स बनाएं। आबी माहिरीन का यही कहना है कि नए डैम्स और स्टोरेज जो टैंक हैं वो हर ज़िला में बन जाएं और नए डैम्स जो हैं वो हर सूबे में होने चाहिए, ताकि जितनी भी सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें हैं, बारिशों का पानी है, उसको स्टोर करके ना सिर्फ हम मुल्की मईशत को, ज़राअत को बेहतर करके मुल्की मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि जो आए रोज़ हर साल नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है हमें बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, हम उससे भी बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें संजीदा तौर पर इकदामात करने होंगे। आबी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील देना होंगी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा, ताकि हर जिला में कम से कम हम जो वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक्स हैं वो बनाएं, जो हर जिला में होने वाली बारिशों के पानी को स्टोर करें और उस पानी को फिर हम मुख्तलिफ जो अमूर हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकें, चाहे हम उसको दोबारा रिसाइकल कर सकें या हम उसको फसलों पे आपाशी के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, हर सूबे में नए डैम्स बन जाएं तो तमाम सूबे जो हैं, देखिए किसी का हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन तमाम सूबे अगर मुखलिस होकर एक दूसरे के साथ मिलकर इस मामले के ऊपर संजीदा होकर बैठते हैं तो मेरे ख्याल से हम इस जो इशू है हमारा, जो ये संगीन मसला है, इससे हम निकल सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अबू तराब साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि जो है डैम बनाने की जरूरत है और हर साल ये आफत आती है और इस आफत को जो है हम एक ब्लेसिंग में तब्दील कर सकते हैं अगर डैम्स बन जाएं। जी ब्रिगेडियर साहब, काइंडली बताइएगा, बीएलए पे हम बात कर रहे थे, काइंडली कंटिन्यू करिएगा प्लीज। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब। बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है ना, मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द तंजीम। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से कहता कि बीएलए दहशतगर्द तंजीम है जी, और बीएलए भी दहशतगर्द तंजीम है, बीआरए भी दहशतगर्द तंजीम है जी। बीएलए जो के अलावा जितने भी वहाँ पे आउटफिट्स काम कर रहे हैं, वो जो बशीर जेब हो गया या जावेद मंगल हो गया या अपना शहरयार मरी हो गया या अपना बरमदाद मुफ्ती हो गया जी, सारे फकीर हैं, ये सारे के सारे खैरात लेते हैं, रॉ से लेते हैं, एनडीएस से लेते हैं, मुसैद से लेते हैं। ये बेगैरत लोग हैं,
जो अपनी माँ को बेच देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर गैरत कोई नहीं, अपने कबीलों के अंदर ये जुल्म जो ढाते हैं। और आप याद रखिएगा जितने भी ये लीडर हैं, जब आप इनके बीच जाके इनके अपने क्लैन को देखेंगे, यानी बुक्ति को देखेंगे, तो बुक्ति के अंदर 10 और ट्राइब है। तो ये 0.00% 1% वाले ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चूंकि बाहर से पैसा मिल रहा है इनको, उनके पैसे पे ये डिजाइनर सूट पहन के फिरते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अफगानिस्तान ने इनको पासपोर्ट दे रखे। और एक जमाना था इसकी, जिन्होंने एक शख्स आजाद खान बलोच, उसने इसराइल के अंदर एक जो है हुकूमत भी कायम रख इजराइल में कायम की थी। अब अगर अमेरिका ने भी ये कहा है कि दहशतगर्द तंजीम है, तो फिर तो अमेरिका को प्रेशराइज करना चाहिए ना, इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी, इन दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट ना करें। अगर जो भी उनको सपोर्ट करता है और जब भी कोई एविडेंस सामने आती है कि फलाना मुल्क इनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो खुद मुल्क वो भी दहशतगर्द हो जाता है। तो दहशतगर्दी के मंतरे, दहशतगर्दी के नैरेटिव को, दहशतगर्दी की हकीकत को लेकर आगे चलना है। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान के बाहर के जो मिशन है उनको इसके ऊपर बड़ा काम करना है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को प्राइज कराएंगे। मगर ये जो है इस जिस तनाजुल में आप बात कर रहे हैं उस पर तो कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो है ये 12 वॉर्स की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया कराची से, तो कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई जो है वो स्टॉप नहीं है। रॉ का तो नेटवर्क काम कर रहे हैं ना। इससे पहले भी बलूचिस्तान में भी पकड़ा गया था, इससे 2 महीने पहले भी एक नेटवर्क पकड़ा गया है। अभी ये परसों जो प्रोफेसर पकड़ा गया है और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपनी उससे कंट्रैक्चुअल स्टेटमेंट जो दी है, वो भी रॉ के एजेंट्स के साथ काम कर रहा था ना। तो ये ग्रुप्स तो काम कर रहे हैं पाकिस्तान, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क और फास्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। टेक्निकल सर्वेलेंस और बाकी जो आपकी चीजें हैं, उसमें पाकिस्तान का इस वक्त कोर इशू जो है, हमारा जो बर्निंग इशू है, वो दहशतगर्दी है जो मुल्क तबाह बर्बाद जाता है। तो तमाम जितने भी आपके इंटेलिजेंस रिलेटेड अदारे हैं, उनको इस एस्पेक्ट पे तवज्जो देनी है, इंटरनल लुकिंग करके इन चीजों के ऊपर। इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं, उनकी जो साइट्स हैं, या उनकी जो सॉफ्टवेयर है, जो अपना लोकेशंस हैं, जो उनके हाइड आउट्स हैं, जो उनके सेफ हाउसेज हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, उनका दायरा इख्तियार बढ़ाने की जरूरत है। एनीबॉडी कॉट अपना आपको टेक्निकल सर्विलेंस जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और वो अपना उसके अंदर काम हो रहा है। तभी इस किस्म के ग्रुप पकड़े जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई हुई है, वो इन्हीं जावेद मंगल ने फैलाई है, बरमदाद बुक्ती ने फैलाई हुई है, मारंग बलोच ने फैलाई हुई है, जो गलत नैरेटिव लेके कि मिसिंग पर्सन है। आधे मिसिंग पर्सन तो पकड़े, जो ये लोग जो मारे जाते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में, ये मिसिंग पर्सन में होते हैं ना। या एक लड़की औरत मारी गई थी, एक वो खुद एक बम्बार है, कोयटा में एक पार्क में बैठी हुई थी और वहाँ उसको पकड़ा गया था, तो उसका नाम भी खुद एक पर्सन में था, मिसिंग पर्सन में था। एक औरत थी इनकी, इन्हीं की एक वर्कर थी जो कनाडा में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी, वो भी मिसिंग पर्सन में थी। और चाइनीज एम्बेसी पे जिन लोगों ने अटैक किया था, उनको वो जब मारे गए, उनके DNA निकाल के टैग, वो भी मिसिंग पर्सन में थे। लाहौर में जो ऑपरेशन हुआ था खुद के खिलाफ, वहाँ जो खुदकश बम्बार था, जब उसका DNA लेके गए, उसका नाम भी मिसिंग पर्सन में था। तो ये जो अपना PF बेस पे जो अटैक हुआ है, जिसमें कुछ उज़्बेक थे, कुछ बलोच थे, उनकी जब DNA निकाले गए, वो भी मिसिंग पर्सन में। तो ये 80% मिसिंग पर्सन तो वो है जिनको ये दहशतगर्द तंजीम में जो है वो मिसगाइड करके अपने कैडर पर जाके उनको ये वहाँ पे एक ऑपरेशन का ये $500 देते हैं। वो डॉलर कहाँ थे? इनके बाप ने डॉलर अपना पैदा करने की फैक्ट्री लगाई हुई है वहाँ। मारंग बलोच के अब्बा जान ने लगाई हुई है फैक्ट्री वहाँ पे बलूचिस्तान में डॉलर प्रोड्यूस करने की। वो अमेरिकन इनको डॉलर देते हैं ना, जिससे अपना लाइफ स्टाइल जो है, बिल्कुल सही, उसके जो बिल्कुल सही है, अपने बाकी मोटिव जो ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसके जो एक्सपेंसिव है, सारी इनको रॉ प्रोवाइड करती है, उनके पेरोल के ऊपर है। बिल्कुल सही, वो नैरेटिव देती है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी बाबा साहब, क्या कहना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब के मौकफ पे? ब्रिगेडियर साहब के मौक़िफ़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखिए, जैसे पहले आपको कह चुका हूँ कि 10-11 मई की रात को जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक दर्दनाक शिकस्त दी, तो उसके बाद से भारत ने अपनी प्रॉक्सीज को ये टास्क दिया, फितनतुल हिंदुस्तान को ये टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान के अमन को खराब करना है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। और 10-11 मई की रात को ये फितनतुल हिंदुस्तान BLF ने पूरी साजिश की थी कि किस तरीके से इन्होंने
भारत एक तरफ से हम पर हमला करेगा और दूसरी तरफ से इसकी प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वाहिश बलूचिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थी, हमने इनकी इस साजिश को नाकाम बनाया। अब भारत को पता चल गया है कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी पाक आर्मी ने जो इन्हें जवाब दिया है, उसके बाद पता चल गया है कि वो अफवाज पाकिस्तान से या पाकिस्तान की फोर्सेज से मुसलसल डायरेक्ट जंग नहीं कर सकता। तो अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये हालात खराब कर रहा है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मई के बाद अगस्त में बड़ी कामयाबियां हुई हैं, सिफारती महाज से बाबा साहब, मैं बाबा साहब वापस आपकी तरफ आता हूं, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इनका हल क्या है? हाउ वी कैन एलिमिनेट एज सून एज पॉसिबल। हम कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, कैसे जो है 0% क्राइम कह लें या मिनिमम क्राइम कह लें या मिनिमम दहशतगर्दी को किया जा सकता है बलूचिस्तान में? जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर साहब के मौकफ पे? जी ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे आप बाबर साहब के मौकफ पे, प्लीज? आई थिंक सो के जी बाबर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इसका हल क्या आपको नजर आता है? इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, पाक फौज कुर्बानियां दे रही है, अवाम कुर्बानियां दे रही है, इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, ये मिनिमाइज किया जा सकता है? बाबर साहब। देखिए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हमेशा एक बात कहते हैं और मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा, उनकी बात से मैं मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। जो भी शख्स, जो भी लोग, जो भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें, उस आंख को हमें निकालना होगा। दहशतगर्दों से डरने की कोई बात नहीं हो सकती। जो हमारे मासूम और नहत्ते लोगों का कत्लेआम करता है, हमारे मासूम और नहत्ते लोगों को शहीद करता है, उसके साथ तो कोई बात नहीं हो सकती। उसका तो एक ही हल है कि उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाए, उन्हें एलिमिनेट किया जाए। अगर आप बात करें बलूचिस्तान के मसले की, बलूचिस्तान के मसले के हल की, तो मैं बहैसियत बलूचिस्तानी खुद उस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का जो एक बयानिया बनाया जाता है, कोई एहसास महरूमी का बयानिया नहीं है। बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कल का जो दौरा तुरबत था, वो भी यही तासुर देने की देखे पूरी कोशिश है कि हम बलूचिस्तान की तरक्की के साथ, बलूचिस्तान के अमन अमान के साथ और बलूचिस्तान के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए। फील्ड मार्शल गाए बगाए वक्तन फवक्तन बलूचिस्तान का दौरा करते रहते हैं। बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है, लेकिन ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, ये बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते। इनको इनके आका भारत ने ये टास्क दिया हुआ है, ये टास्किंग पर है, इन्हें डॉलर्स मिलते हैं, इन्हें फॉरेन फंडिंग होती है कि आपने जाके बलूचिस्तान का अमन अमान खराब करना है। तो ऐसे दुश्मनों को, आस्तीन में छुपे हुए सांपों को, इंडिया के टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्दों को जल्द से जल्द जहन्नुम हासिल किया जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर आज कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में भी वजीरिस्तान और वाना की तरफ की ऑपरेशन की जरूरत है कि जो भी लोग रियासत के खिलाफ है, जो भी लोग रियासत के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, उन सब का किला कुमा किया जाए, उन्हें सफाए हस्ती से मिटाया जाए। बलूचिस्तान का मसले का हल बड़ा आसान है। आप इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करें, इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करें, यहाँ पर लोगों को, नौजवानों को इंगेज करें, नौजवानों को रोजगार दें, तरक्की के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करें, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करें। बलूचिस्तान की धरती में अल्लाह पाक ने बड़ा पोटेंशियल रखा है। बिल्कुल सही। मगर बाबा साहब वहां पे अवामी सूरत हाल पे बात की गई DGISPR की जानिब से कि अवाम की, बलूचिस्तान की अवाम की सपोर्ट की जरूरत है, उनकी सपोर्ट से सारा ऑपरेशन होंगे। हम नहीं चाहते कि हम ऑपरेट करें और उसके बाद दहशतगर्द भाग जाएं और दोबारा फिर वापस आ जाएं। तो अवामी सपोर्ट की बड़ी जरूरत है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बलूचिस्तान की अवाम की जो सपोर्ट है वो पूरी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान में रहने वाला एक बलूचिस्तानी भी इतना ही मुहिब वतन है जितना पंजाब में रहने वाला एक पंजाबी भाई हो, सिंध में रहने वाला सिंधी भाई हो या केपी में रहने वाला पश्तून भाई हो। बलूचिस्तान की आवाम की पूरी सपोर्ट है अफवाज पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान पे फख्र करते हैं। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, हमें अपनी फौज पर फख्र है। हम तो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान आए और आज तक अफवाज पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से जो है बलूचिस्तान में अमन कायम है। अफवाज पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। कोई भी कुदरती आफत हो, जलजला हो, तूफान हो, सैलाब हो या कोई बीमारी हो,
قدرتی کوئی بھی آفت ہو سب سے پہلے یہ افواج پاکستان ہی آتی ہے اور ہمارے لوگوں کو ریسکیو بھی کرتی ہے, ہمارے لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں گزشتہ دنوں کے میں سیلاب آیا ہے, افواج پاکستان کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے انہیں آج جواب مل گیا. افواج پاکستان سب سے اول میں جا کر اس نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, لوگوں کو سیلاب میں جو ہے ان کی مدد کی ہے, ان کو شیلٹر ان کو اس پریشانی سے اس تکلیف سے نکالا ہے. تو بلوچستان کی عوام اپنے افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے. DCI-SPR کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی جو محاذ ہے وہ عوام کی طاقت کے بغیر اور عوام کی حمایت کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آج آپ کے پروگرام میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, بلوچستان کے 90% عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے. یہ 10% شرپسند ہیں جو اپنے آقا سے بھارت سے پیسے لیتے ہیں, جو پراکسیز ہیں, اس میں جو ہے افغانیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ افغانستان جنہوں نے کارڈ لیے ہوئے پراپرلی اور وہ بھی اس میں انوالو نظر آتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی بالکل, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بلوچستان کے ڈائنامکس ہیں, بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں, ایک افغانستان کا بارڈر اور ایک ایران کا بارڈر. 1600 کلومیٹر پر ہمارا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ. تو افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, انوالومنٹ ہوتی ہے. افغان جو یہاں افغان کرمنل لوگ, میں تمام افغانوں کو برا نہیں کہوں گا, لیکن افغان کرمنل وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, یہاں پر بھارت سے پیسے لے کر وہ یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. حکومت پاکستان نے جب یہ ایک پالیسی بنائی ہے کہ کسی افغانی شہری کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا, یہ بہت اچھی پالیسی ہے. ہم نے 35 سال افغانیوں کی میزبانی کی ہے, ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے, ان کے لیے ہم نے جتنا اچھا ہو سکتا تھا انسانی حقوق پہ انسانی بنیاد پر ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. لیکن اب اگر ہمارے ملک میں کسی چیز میں دہشت گردی میں ملوث ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ انہیں یہاں پر چھوڑا جائے گا. دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ دیکھیں جب گزشتہ افغانستان میں جو گزشتہ حکومت تھی اس میں بھارت نے اپنے افغانستان کے تمام شہروں میں کتنے قونصلیٹ کھولے ہیں, کتنے سفارت خانے کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ اب کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کروائے, پاکستان کے اندر حالات خراب ہوا ہے. ہم نے بھارت کے حاضر سروس انٹیلیجنس افسر کلبھوشن یادو کو جب پکڑا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کس طریقے سے وہ افغانستان کے راستے سے, ایران کے راستے سے بلوچستان میں دستبردی کر رہا تھا. اسے ٹاسک دیا گیا تھا کہ بلوچستان کو اور پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. تو بالکل افغانیوں کی اور افغانستان کی انوالومنٹ رہی ہے. ہمارا دفتر خارجہ, ہماری حکومت بار بار متعدد بار افغان حکومت کو بتا چکی ہے. ہم نے انہیں ایڈوائزریز جاری کی ہے, ہم نے انہیں سفارتکاری کے طور پر خط لکھے کہ آپ افغانستان سے پاکستان میں در اندازی مت ہونے دیں. وہاں پر جو فتنے بیٹھے ہوئے, فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو, وہ انہوں نے بلوچستان کے حالات اور پاکستان کے حالات خراب کیے. کل جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا ہے تربت کا اور اس دورے پر گئے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے پوری تیاری کرائی ہے, پورا انہوں نے تعاون کا کہا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ افواج پاکستان بڑا تعاون کرتی رہی ہے اور بلوچستان کی 90% سے زائد جو عوام ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے, افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے. اس دفعہ 14 اگست کو تربت میں, گوادر میں, پنجگور میں, قلعہ عبداللہ میں, خزدار میں, واشک میں, آوران میں, جتنے بھی بلوچستان کے اضلاع ہیں 36 کے 36 اضلاع میں لوگ نکلے ہیں. انہوں نے مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا ہے, انہوں نے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا ہے. تو بلوچستان کے عوام بھی افواج پاکستان, میرا پنجاب میں رہنے والا, کوئی لاہور میں رہنے والا پنجابی بھائی ہے اور ہم پورے لیتے ہیں افواج پاکستان کو کہ آپ آئیں. ابھی ایران میں بابر صاحب, ابھی ایران میں بھی جو ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو اسرائیل کا اٹیک ہوا, وہاں پہ بڑے غدار پکڑے گئے, بڑے ایجنٹس پکڑے گئے. تو ایران کی سرزمین بھی کسی ٹائم میں یوز ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اس بات میں تو آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, اس میں تو اختلاف کی کوئی وہی نہیں ہے کہ بالکل افغانستان کی سرزمین جو ہے استعمال ہوتی رہی ہے. میں نے آپ اگر دیکھیں 2010 سے لے کر 2020 تک ہندوستان نے افغانستان میں اپنے کتنے سفارت خانے کھولے, اپنے وہاں پر کتنے جو ہے نا قونصلر خانے کھولے. وہاں پر ہندوستان کا کام ہی یہی تھا کہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آج بھی یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں, فتنۃ الہندوستان ہے, یہ TT کے لوگ ہیں, TTA کے لوگ ہیں یا BLA کے لوگ ہیں, ان کے ٹریننگ کیمپ افغانستان میں موجود ہیں.
انہیں افغانستان کی حکومت کی طرف سے شیلٹر ملتا ہے، اور ہم بار بار اقوام متحدہ میں جا کر، عالمی اداروں میں جا کر، اپنے ہمسایہ ممالک سے، دوست ممالک سے بار بار یہ کہتے رہے کہ بھارت میں ان کے جو افغانستان میں فتنۃ الہندوستان کے جو ٹھکانے ہیں انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ یہی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی وجہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بابر صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی بات، اس کے بعد تورات صاحب کی بات، اس کے بعد بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے اور اس سے ہی دہشت گردی کم ہوگی، ایلیمینیٹ ہوگی یا مینیمائز ہوگی۔ ناظرین، پروگرام برملا کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ اللہ حافظ۔